Welcome to the ultimate guide to CUET 2025 webinar. My name is Tushar. I am the founder of CUET Pro and alumnus of Shriram College of Commerce. This webinar is organized by CUET Pro in collaboration with the Commerce Society of SRCC. In this webinar, we'll be covering what is the format of CUET like, what are the tips and tricks that you should take care of if you want to crack CUET 2025 like a pro, and what are the major changes that have happened in this year's CUET. So if you want to be a student who cracks it like a pro, watch the webinar till the end. Also, we are organizing free one-on-one counselings by the name of Mentoring Hot Desk. So you can find the link in the description and register for it now. Take advantage, enjoy the webinar. That is why we decided to start CUET Pro. We started in 2022 when the test came out, and since 2022 till last year, 2024, we had excellent results. So last year we had an all India topper. She scored 1000 on 1000. 2024 की बात कर रहा हूँ. 2023 also we had an all India topper. She scored 1000 on 1000. And 2023 second में जब पहली बार exam आया था, we had 4 students who went to SRCC, 5 students who went to Hindu. So this is just happening because we put a lot of passion into teaching these students, and because we have been from that background, that is why we are able to send them to colleges like these. So this is a very brief of what we do at CUET Pro. We are very happy with working with Commerce Society and having this webinar. So what I want to do is, before I get into details of what are the changes, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, I would want to first spend time on क्या CUET है क्या, because a lot of students might not be aware कि यार CUET क्या है, उसमें क्या क्या कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, और कैसे अगर तुम क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, so तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए if you want to crack an exam like CUET. So I'm going to be running you through कि क्या एग्जाम है. So what happened was, before 2022 क्या होता था, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे परसेंटेज निकलती थी और उससे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन होता था. उसमें चैलेंज होता था कि यार कुछ बोर्ड्स बहुत मार्क्स देते थे, कुछ बोर्ड्स बिल्कुल मार्क्स नहीं देते थे. तो जो बोर्ड्स बहुत मार्क्स देते थे उसके बहुत सारे बच्चे उन कॉलेजेस में जाते थे विच वर गुड कॉलेजेस, एंड जो बोर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलते थे उनके बच्चे जा नहीं पाते थे. सो देयर वाज डिस्क्रिपेंसी विद रिस्पेक्ट टू some boards giving away a lot of marks, some boards not giving away those kind of marks to their students. And that is why government came out with an exam which is called Common University Entrance Test, and they released this exam in the year 2022. So उस साल क्या हुआ था जब ये एग्जाम आया, ये एग्जाम जो कराती है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जो कि सारे नीट, आईआईटीज और जेईज और ये सारे जो एग्जाम है वो कराती है. वो सेम ही एजेंसी सीयूईटी भी कराती है. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, व्हेन सीयूईटी केम आउट, देयर वर ओनली 32 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने बोला कि यार हम लोग सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है वो हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बेसिस पे आने वाले अपने कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको एडमिशन देंगे. सो ओनली 32 यूनिवर्सिटीज वर टेकिंग द टेस्ट, accepting the test when it came out in 2022. When the exam happened, till the time exam happened in 2022, we saw that there were close to around 100 universities that were accepting this exam. In 2024, after 3 years, there are around 283 universities across India which are accepting CUET. And most of these universities actually are only accepting CUET. तो अगर तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें सीयूईटी के थ्रू ही जाने का मौका मिलेगा. योर क्लास 12 मार्क्स, बोर्ड मार्क्स आर नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट. ठीक है, सो प्लीज बी क्लियर एंड इन्फॉर्म. डोंट सिट एंड डोंट ड्रीम कि हम लोग एग्जाम खत्म कर लेते हैं बोर्ड का, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे. उससे पहले ही फॉर्म खुल जाएगा, उससे पहले ही फॉर्म बंद हो जाएगा. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हेन द फॉर्म इज ओपनिंग एंड फिल द सीयूईटी फॉर्म, बिकॉज उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा. This was the first scenario. Now, what also happened in terms of number of students. जिस साल CUET आया था, उसी साल there were around 10 lakh students who gave the exam. Last year in 2024, there were 13.6 lakh students who gave the exam. It became the second biggest exam of India after NEET, and this is happening just in a matter of 3 years. Okay? This is the second, biggest change that you have seen. Third change. जिस साल एग्जाम आया था 2022 में, उस टाइम रिजल्ट के टाइम पे व्हेन वी सॉ द रिजल्ट, वी वर वेरी वेरी एस्टोनिश्ड, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से अराउंड 8000 स्टूडेंट्स हैड फुल मार्क्स इन इंग्लिश. फुल मार्क्स का मतलब है 200 में से 200 नंबर आए थे उन बच्चों के. लास्ट ईयर इन 2024,
when 13 lakh students gave this exam, there were only 1500 around students who had full marks. So 10 लाख में से 8000 बच्चों के फुल आए थे इन 2022। 2024 में 13 लाख में से 1500 बच्चों के ही फुल मार्क्स आए थे इन 2024। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर एंड दिस शुड गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई एग्जाम मुश्किल हो रहा है। लास्ट ईयर इन इकोनॉमिक्स आई थिंक द नंबर वाज अराउंड 800 900 जिन बच्चों के फुल मार्क्स आए थे। जनरल टेस्ट में आई थिंक एक बच्चा था पूरे इंडिया में जिसके फुल मार्क्स आए थे आउट ऑफ 13 लाख स्टूडेंट्स। और जिस साल एग्जाम हुआ था उस दिन बहुत सारे बच्चे उस साल बहुत सारे बच्चे थे। सो एग्जाम मुश्किल हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज विच आर एक्सेप्टिंग दिस एग्जाम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एग्जाम केम। आई वॉन्ट टू मूव टू टॉकिंग अबाउट यार एग्जाम दिखता कैसा है या फिर क्या उसका पैटर्न होता है। सो एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 इज प्राइमरली आर लैंग्वेज सेक्शन, जिसके अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। मोस्ट ऑफ यू वुड मे बी either be going for English or you would be going for Hindi or some other language which you guys would be learning. Secondly is the domain specific subject which is there. डोमेन सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। तुम्हारा अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पीएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, पॉल साइंस हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में सम पार्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सम पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड सम पार्ट इज जीके, जनरल नॉलेज, जिसमें दो तरह की जीके आती है, करंट अफेयर्स वाली जीके और स्टैटिक जीके आती है, जैसे करेंसी हो गया और स्टेट्स हो गया, इस तरह की जीके भी आती है। सो ये 3 पोर्शंस होते हैं। एज आई सेड इन लैंग्वेज, जो सबसे प्राइमरी लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में 3-4 चीजें आती हैं। एक तो तुम्हें ग्रामर आती है, एक तुम्हारी वोकैबुलरी आती है और एक तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। सो इट इज नॉट वॉट यू आर रीडिंग इन क्लास 12th, इट इज जनरल इंग्लिश एंड बहुत बेसिक इंग्लिश से लेकर बहुत एडवांस्ड इंग्लिश तक पूछी जाती है। सो यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट टू रीड इन लैंग्वेज। ठीक है, सो ये 3 पोर्शंस होते हैं। अब इन 3 पोर्शंस को दिया क्यों गया है वो बताता हूं मैं। अब क्या होता है, वेन एवर यू गो टू और अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी, मान लो तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा फॉर बीबीए कोर्स, तो उनका उस स्पेसिफिक कोर्स का उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी अगर तुम्हें बीबीए में एडमिशन चाहिए ना तो तुम्हें एक लैंग्वेज देनी है मुझे विच इज इंग्लिश, एक तुम्हें सेक्शन 2 में से सब्जेक्ट देना है मुझे विच इज मैथ्स, एंड एक तुम्हें सेक्शन 3 में से सब्जेक्ट देना है मुझे विच इज जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट। ठीक है, सो 3 सेक्शन में से एक एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा और डिफाइंड है इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी दूसरे किसी कोर्स के लिए बोलेगी कि मुझे सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज चाहिए विच कुड बी लेट्स से इंग्लिश, और सेक्शन 2 में से 3 सब्जेक्ट चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, अकाउंट्स ले सकते हो। ऐसे 3 सब्जेक्ट तुम्हें सेक्शन 2 में से उठाने हैं। और अगर तुम्हें बीकॉम में एडमिशन चाहिए, मुझे सेक्शन 3 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर डिफरेंट कोर्सेज might ask you for different sections, and that is why CUT becomes complicated, and students come to us for form filling कि सर कौन सा लैंग्वेज ले, कौन सा डोमेन ले, कौन सा जनरल टेस्ट ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। हाँ, कमिंग टू सिलेबस। I hope you're having fun. If you want to go to your dream college, you can register for our ultimate CUET crash course, which is starting at the end of March 2025. And we're also running a 10% off on the fees of the crash course. So click on the link in the description and register for it now. Now, syllabus, if you look at what is the syllabus of CUET, what is the syllabus of your board exams, majority syllabus which comes in CUET, around 60%, 70% of the syllabus that comes in CUET is from your class 12th boards. ठीक है, so जो boards हैं, the syllabus of NCERT which is there is extremely important. Please read NCERT religiously. It can't be compromised on. The rest of the 40% or 30% syllabus is different. So a student who is willing to go to a good college and crack CUET very, very professionally has to do both 70% also 30% also, क्योंकि जो 30% है उसमें क्या क्या आता है वो बता देता हूँ। फर्स्ट यू गेट लिटरेचर, मतलब योर इंग्लिश। तो इंग्लिश जो होती है वो जनरल इंग्लिश होती है, इट इज नॉट इंग्लिश दैट यू रीड इन योर क्लास 12, तो वो पूरा अलग होता है, वो तुम्हें स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा।
और इंग्लिश ऐसी चीज नहीं है जो एक बुक है कि यार मैं तुम्हें एक बुक पकड़ा दूं उसमें से तुम पढ़ लो और तुम पास हो जाओ। इंग्लिश में कुछ भी पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी 100% श्योर कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैक्रो आएगी, इंडियन इकोनॉमी आएगी जो तुम्हारी 12th में है। इंडियन इकोनॉमी में दो चैप्टर्स नहीं आते तुम्हारे सीबीएसई में, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी पूछे जाएंगे इन सीयूईटी। एंड माइक्रो केक भी फर्स्ट 6 चैप्टर्स आएंगे इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम टीआर जैन वीक्योरी बुक। सो 6 चैप्टर्स फ्रॉम माइक्रो, एंटायर मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी ऑफ योर सीबीएसई, एंड 2 additional चैप्टर्स फ्रॉम इंडियन इको। तो ये पूरा सिलेबस आएगा। काफी सारा सीबीएसई में, काफी सारा नहीं है। सिमिलरली अकाउंट्स तुम देखोगे, अकाउंट्स में एक बुक आएगी विच इज गोइंग टू बी ऑन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सो यू हैव टू रीड दैट विच इज नॉट इन योर सीबीएसई। You also have to read we also have to read non for profit organization accounting, NPO accounting होती है, वो 12th में नहीं होती, वो अलग से पढ़नी पड़ेगी। And that would also be a part of your CUET syllabus। ठीक है। BST is mostly what you did in class 12 same। बीएसटी बता दिया, इकोनॉमिक्स बता दिया, अकाउंट्स बता दिया, इंग्लिश बता दिया। हाँ, मैथ्स, अप्लाइड एंड कोर मैथ्स वाले बच्चों का एक ही पेपर आता है, अलग अलग पेपर नहीं आता है। सो अप्लाइड वालों को थोड़ी बहुत कोर आनी चाहिए और कोर वालों को थोड़ी बहुत अप्लाइड आनी चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस दैट कम इन योर मैथ्स पेपर, 15 क्वेश्चंस आर कॉमन क्वेश्चंस फॉर बोथ। अप्लाइड वाले के लिए भी सेम होंगे वो 15 क्वेश्चंस, और कोर वाले के लिए भी सेम होंगे। सो बोथ द कैंडिडेट्स शुड नो सम पार्ट ऑफ ईच अदर्स syllabus। So this is how syllabus looks like. So if you are a student who is just relying कि यार मेरे को ना सीयूईटी नहीं करना अलग से, मैं जो बोर्ड में कर रहा हूँ उतना काफी है, एंड मैं बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूंगा, एक बार रीरीड कर लूंगा जब सीयूटी होगा, इट मे बी अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू, बट इट मे बी ओनली अ गुड स्ट्रैटेजी इफ यू आर नॉट टारगेटिंग अ गुड कॉलेज। इफ यू आर ओके हैविंग एन एवरेज कॉलेज, प्लीज डू दिस। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज टारगेटिंग अ गुड कॉलेज, बेस्ट कॉलेज चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज चाहिए, यार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर इतना आसान होता तो लोग पागलों की तरह क्यों पढ़ते? ठीक है, फिर अलग से प्रिपरेशन क्यों करते? सो इफ यू आर सीरियस, यू वांट टू गो टू अ गुड कॉलेज, प्लीज प्रिपेयर। इफ यू आर ओके गोइंग टू एन एवरेज कॉलेज, प्लीज डोंट प्रिपेयर। ठीक है, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ टेकिंग दैट एक्स्ट्रा हेडेक। बट फॉर स्टूडेंट्स हु आर सीरियस, प्लीज डू प्रिपेयर, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्जाम विच इज एन एग्जाम की बस ऐसे निकल जाएगा। इट इज एन एग्जाम ऑफ परफेक्शन। अब एसआरसीसी के कट ऑफ लास्ट ईयर वाज 782 आउट ऑफ 800। दैट मींस कि उन बच्चों ने जिन्होंने कट ऑफ क्रैक किया है, उन्होंने उनको 160 क्वेश्चन दिए गए थे इन ऑल द एग्जाम्स दैट दे गेव फॉर सीयूटी, एंड आउट ऑफ ऑल 160 क्वेश्चंस दे ओनली मार्क्ड मे बी 2 और 3 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। तो 160 में से उनके एक या दो क्वेश्चन ही गलत थे, बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। ठीक है। वो और वो तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, वरना उस टाइम तुम तुक्का मारोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सिर्फ 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की मिस्टेक करो, बाकी सही हो पेपर। ठीक है। सो प्लीज प्रिपेयर सिंसियरली if you want to crack it more properly. Now this is the format of last year. Broadly format समझा देता हूँ। I'll tell you what has changed this year. तो क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। सो व्हाट हैपेंस इज यू गो टू एन एग्जामिनेशन सेंटर, वहां पे तुम्हें एक लैपटॉप एलोकेट होता है, कंप्यूटर एलोकेट होता है, उस सिस्टम पे एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम इज इन एमसीक्यू फॉर्मेट, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर तक 50 क्वेश्चन आते थे जिसमें से 40 करने होते थे। इस साल वो चेंज हो गया है। आई टेल यू व्हाट इज द अपडेट। ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और तुम्हें वो एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा। मोटा मोटा तुम्हें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट दिया जाएगा। सो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव, एंड यू हैव टू सॉल्व देम एक्यूरेटली, क्योंकि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। सो ब्रॉड फॉर्मेट ये रहता है। ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि जो तुम्हारे सीयूईटी के पेपर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं होता बोर्ड की तरह 10 दिन के लिए, 10 दिन में होता है, 1 महीने में होता है, 2 महीने में होता है। जो भी तुम्हारे पेपर्स होंगे सीयूईटी में, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स इन अ मैटर ऑफ 3 days। सो लास्ट ईयर 3 दिन के अंदर तुम्हारे 5 से 6 टेस्ट लिए गए थे, जिसके अंदर वो 3 दिन में कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि एक दिन में 1 से 2 पेपर दिए थे, या फिर 1 से 3 पेपर तक दिए थे, कि एक दिन में 3 पेपर है, सेंटर में घुसे और पेपर देके शाम को निकले 3 पेपर देके। सो ऐसा भी हो सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉड format. I am not going to details of the format because this is an incorrect format, last year format actually। अभी मैं updates बताऊंगा। These are couple of FAQs। तो ये FAQs मैं अभी बता देता हूँ।
in case anybody has these FAQs, and then I'll talk about, doubts later on. So first is, do I require maths for CUET? It is not compulsory for you to have maths in CUET. कुछ कुछ कोर्सेज में मैथ्स कंपलसरी है, कुछ कुछ कोर्सेज में मैथ्स कंपलसरी नहीं है. सो आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हो, प्लीज सी कि आपका कौन सा कोर्स है और उसमें मैथ्स जरूरी है या नहीं जरूरी है. Students who don't have maths in class 12th can also go to SRCC even without having maths with them in their syllabus. ठीक है, क्योंकि in SRCC you also have a BCom honors का कोर्स. उसका क्राइटेरिया इज इंग्लिश प्लस अकाउंट्स और मैथ्स एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट. तो अकाउंट ले लो या मैथ्स ले लो, अगर मैथ्स नहीं है तो अकाउंट चूज कर लो. ठीक है, and even rest of the subjects that you have, courses that you have, you can do it without maths also. Is the syllabus same for boards and CUET? 60%, 70% syllabus is same. Rest 30 to 40% syllabus is different. I have highlighted what is different. You can take a call on how do you want to prepare for it and how early do you want to prepare for it if you are preparing for an exam like CUET. Then other question is, I am preparing for IP MAT, so CUET would be easy for me. Both of these exams are excellent exams. ठीक है, IP MAT is an exam जिसको कि तुम देके IIM इंदौर जा सकते हो for their 5-year integrated program. And CUET is an exam जिसको देके you can go to good universities like Delhi University, colleges like SRCC, Hindu, Hansraj, LSR. Now format जो होता है ना दोनों एग्जाम का बहुत अलग है. देखो, IP MAT focuses majorly on your English, your aptitude, बट CUET मेजरली फोकसेस ऑन योर डोमेन, कि डोमेन पे तुम्हारी कितनी अच्छी पकड़ है. तुमको इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST कितने अच्छे से आती है. इंग्लिश एंड GT इज अ पार्ट, बट 5 सब्जेक्ट में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट इंग्लिश GT है, बाकी 3 सब्जेक्ट जो हैं वो तुम्हारे डोमेन है. सो CUET की प्रायोरिटी होती है कि यार वो डोमेन पे ज्यादा फोकस करता है. IP MAT की प्रायोरिटी होती है कि वो तुम्हारे इंग्लिश और GT पे फोकस करता है. ठीक है, rest, if I tell you like a more safer choice, my suggestion would be go for CUET as compared to IP MAT. क्योंकि IP MAT एक तो लेते 2-3 कॉलेजेस हैं. IIM इंदौर लेता है, रांची लेता है, बोधगया लेता है, रोहतक लेता है, ऐसे 2-3 और है. ठीक है, सो वेरी लिमिटेड कॉलेजेस एंड वेरी लिमिटेड सीट्स. IIM इंदौर में आई बिलीव देयर आर 150-200 सीट्स. Similarly, if you compare all the other IIMs, you would have maximum of 600-700 seats in total for an exam like IP MAT. CUET is a little relaxed because it has 250 plus universities. Also, if you look at the best university which is there, in my opinion, in CUET, which is Delhi University. Delhi University के अंदर ही 70 कॉलेजेस हैं जिसमें मल्टीपल कोर्सेज हैं और मल्टीपल सीट्स हैं. सो अगर तुम BCom भी करना चाहते हो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें भी तुम्हारे पास इनफ सीट्स होंगी. तुम्हारे पास आराम से आई थिंक 2-3 हजार सीट्स होंगी जो तुम यूज कर सकते हो इन द एंटायर यूनिवर्सिटी. सो देयर आर मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस. It has wider options that you can explore, and it has a plan B also. अगर एक कॉलेज नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा हो जाएगा. IP MAT में वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि उसमें है ही लिमिटेड कॉलेजेस. ठीक है. Fourth question, I am preparing for CLAT. What should I do? If you are preparing for CLAT, तो CLAT वाले बच्चों का बहुत अच्छा फंडा होता है और डिजाइन वालों का भी अच्छा फंडा होता है. उनके एग्जाम जैन में या दिसंबर में हो जाते हैं. जैन या दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे तो यू वुड गेट द रिजल्ट बाय February March. Get the results. After you are done with your results, then see कि यार मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है तो CUET दे दो. At least you will have a plan B. Fifth question, Mumbai University would take percentage, then why give CUET? If Mumbai University is going to be taking a percentage, so वो Mumbai University ने क्या किया था last year? Mumbai University came out with a separate test which was called MHCET, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंग्लिश लिया जाएगा और तुम्हारा GT लिया जाएगा. सो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड लिया जाएगा, and that is what is going to help you get admission in Mumbai University. Majority BB और BMS वाले जो courses थे उसके अंदर. So if you want to go to Mumbai University, you should prepare for an exam for either Mumbai University or prepare for CUET, क्योंकि CUET में English GT तो वैसे ही पढ़ते हो. तो जो English GT तुम पढ़ते हो CUET में, you can sit with the same English GT for Mumbai University also, and that is going to help you crack the exam. Same would happen with NMIMS, same would happen with CRI, same would happen with Symbiosis. इनमें से किसी में भी जाना है, just prepare for either CUET or any relevant exam for which is similar to them, and you would be good to go. Sixth one is, I'm planning to prepare for CA, so is it good idea to give CUET?
आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जब मैं एसआरसीसी गया था ना, उस टाइम पे मुझे लगता था यार मेरे को सीए करनी है। और फर्स्ट ईयर जब मैं गया वहां पे, तो मैंने देखा कि वहां पे दो तरह के बच्चे होते हैं। आधे बच्चे सीए करते हैं और आधे बच्चे करते हैं कैट की प्रिपरेशन। सो आधे बच्चों ने सीए करनी शुरू कर दी फर्स्ट ईयर से। जो बच्चे सीए नहीं कर रहे थे, वो कैट की प्रिपरेशन शुरू कर देते सेकंड थर्ड ईयर से। ठीक है, सो दीज टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू विल गेट इन अ कॉलेज लाइक एसआरसीसी। आई वाज द ऑड वन आउट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मजे किए कॉलेज में और बस टाइम पास किया। सो अगर तुम सीए करना चाहते हो, माय सजेशन वुड बी अपना जो जून अटेम्प्ट है उसमें अपना सीए फाउंडेशन मत दो। अपना जो फाउंडेशन है उसको तुम दो नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट में। ठीक है, उससे पहले तुम कोशिश करो कि पहले तुम एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर लो, क्योंकि कॉलेज तुम एक बार ही क्रैक कर पाओगे और सीए का जो अटेम्प्ट होता है हर 6 महीने में होता है। ठीक है, सो क्रैक अ गुड कॉलेज, गो टू अ गुड कॉलेज, and then do CA once you are in a good college, because that good college would help you get a good circle. You also would have time to manage CA. Trust me, talk to anybody from SRCC and you would find that a lot of students do a CA in their college and they are able to do it very successfully. ऐसा नहीं होता अटक जाते हैं, वो ढंग से कर पाते हैं और उनकी रैंक भी आती है। You would find a lot of rank holders who are from SRCC. Uh, and Kshitij sir, because he's a CA. Kshitij, if you would want to add something in this, please do. Right. Hi everyone. Uh, some people are in the waiting room. Just hold on. Yeah. Right. So the thing is कि यार अगर तुम लोग if you guys are very clear कि तुम्हें सीए करना है, correct? तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड अप्रोच कि तुम्हारा पूरा ध्यान अभी से सीपीटी पे होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक फाउंडेशन बहुत टफ कर दिया है पहले से, राइट? फाउंडेशन हैज बीन अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ऑब्जेक्टिव, right? Now CPT has turned into a subjective pattern, but इसमें एक चीज मैं बहुत डिफरेंट तो हाईलाइट करूंगा। सो द थिंग इज कि तुम लोग बोर्ड्स देते हो मार्च में, करेक्ट? And your foundation exams happen in December, right? So earlier what used to happen was कि जो तुम्हारा सीए का entrance exam है, which was earlier CPT, an objective exam, and now foundation a subjective exam. तो earlier what used to happen was it used to happen boards के exam से 2 महीना बाद, same CUET वाला pattern, right? But अभी the thing is वही वही सेम एग्जाम, इट हैपेंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर, करेक्ट? अगर तुमने फॉर एग्जांपल लेट्स से जो बच्चे अभी बोर्ड्स को एग्जाम देंगे 2025 में, करेक्ट? दे विल बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट देयर सीए फाउंडेशन व्हेन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, करेक्ट? उससे पहले वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो इट वुड बी, और बहुत टाइम होता है ऑनेस्टली प्रिपेयर करने के लिए, तो इट वुड बी एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी so that you have a good college in hand if you do not clear your foundation exam, right? क्योंकि देर आर हाउ मेनी मंथ्स, आई थिंक 7-8 months हो गए प्रिपरेशन के लिए, आई थिंक 3 to 4 months आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन, राइट? सो जैसे इफ यू गाइज आर टारगेटिंग कि मुझे फाउंडेशन देना ही है, करेक्ट? सीए फाउंडेशन देना ही है, सो इवन इफ यू गाइज डोंट क्रैक फाउंडेशन यू विल हैव अ गुड कॉलेज टू फॉल बैक अपॉन। एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो आई थिंक अगर इवन इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए, देन ऑल्सो आई थिंक यू शुड मेंटेन अ क्वेश्चन, क्योंकि फाउंडेशन का भी पासिंग परसेंटेज आई थिंक 10-15% से ज्यादा नहीं जाता है, मैक्सिमम इट गोज अप टू 20-25%। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 25 बच्चे निकालते हैं खाली, राइट? इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन ऑप्शन। All right. Okay. Uh, okay. So this is how, majorly CUT is going to be looking like. I would run you through the changes, but before we do the changes, Kshitij, would you want to first cover tips and tricks? राइट, है ना, करेक्ट। फिर मैं changes तो बता देता हूँ। आई थिंक क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, एक ऑर्डर में चलते हैं, राइट? तो पहले बात करते हैं कि व्हाट माइंडसेट शुड अ स्टूडेंट कैरी इफ ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी जेन्युइनली, करेक्ट? तो सबसे पहले तो यू गाइस शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम पैटर्न, राइट? विच आई थिंक तुषार सर ने बहुत अच्छे से बताया आपको। इतने अच्छे से कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम में क्या आएगा, कैसा एग्जाम होता है। एंड आई बिलीव आउट ऑफ I think there are 300 of us.
इसमें से करीब 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम पता लग रहा होगा कोर्स का पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम में क्या आएगा, पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि उसके बिना यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर इट वेल, राइट। ठीक है, मूविंग अहेड, हम लोग ना कुछ पहले बात करते हैं कि हम गलतियां क्या करते हैं प्रिपरेशन में। सो लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन पिटफॉल्स विच वी फॉल इनटू, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कोई भी सवाल आता है, हम सबसे पहले हमारे दोस्त की तरफ भागते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, जो तू कर रहा है मैं वही करूंगा, करेक्ट। हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ होता है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, अब तुम लोग की तो खैर प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, कुछ भी स्कूल में कुछ हुआ, लेट्स टॉक अबाउट सीयूईटी इन आवर केस, कि अपना फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। ठीक है, इफ नॉट योर फ्रेंड, देन यू विल गो टू दैट भैया जिनका एसआरसीसी में एडमिशन हो गया है, या फिर यू विल गो टू सम कजन ऑफ योर्स, या फिर तुम्हारा कोई सीनियर हु इज ऑलरेडी एडमिटेड इनटू अ गुड कॉलेज, तो उसके पास जाओगे कि यार क्या करें, करेक्ट। तो आई रियली थिंक कि प्लीज स्टॉप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्योंकि आई बिलीव इट्स मोर लाइक कि एक क्लूलेस इंसान दूसरे क्लूलेस इंसान से पूछ रहा है कि यार मैं क्या करूं, करेक्ट। लेट्स पुट इट दिस वे, क्योंकि द थिंग इज कि वो तो तुम्हें कुछ भी एडवाइस देके चले जाएंगे, और हम ना बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, कुछ भी हमारा कंसेप्शन बना लिया। तो ऑलवेज, कोई भी डाउट हो, ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होता है, उसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, someone who has scored good in CUET, or someone who has helped someone to score good marks in CUET। बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है उसकी, करेक्ट। तो इधर गो टू समवन जो अच्छे कॉलेज में है, वो तुम्हें गाइड कर सकता है, या फिर गो टू समवन जो कोच करता हो लोगों को, हु हैज हेल्प समवन टू स्कोर अ गुड गुड स्कोर इन सीयूईटी, राइट। मूविंग अहेड, जब भी कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स लेट्स टॉक अबाउट कि यार अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि यार कोचिंग ज्वाइन करेंगे नहीं करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में डाउट यही आता है। कोई 11th क्लास का बच्चा होगा, उसके मन में भी यही डाउट आएगा, कोई 12th क्लास में होगा, बोर्ड्स दे रहा होगा, अभी से मन में चल रहा होगा कि यार क्लासेस करें नहीं करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हमें अलग तरीके से गाइड करते हैं, बट बहुत लॉजिकली इस चीज का एक ही आंसर है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ स्टडी एंड मेंटोरशिप। एंड लेट्स पुट इट दिस वे, अच्छी मेंटोरशिप मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि द थिंग इज के फॉर एग्जांपल अबाउट, आई थिंक 1 out of 1,000 स्टूडेंट्स आर ट्रूली सेल्फ मोटिवेटेड, राइट, एंड डिसिप्लिन्ड इनफ टू कंसिस्टेंटली स्टडी खुद से, राइट। अगर आप उसमें से नहीं हो, अगर आप खुद से, आपको पता है कि आप खुद से, आपको एक पुश चाहिए होता है, यू नीड समवन टू मॉनिटर यू, यू नीड एन एक्सटर्नल गाइडेंस, या फिर तुम्हें एक्सटर्नल सपोर्ट हमेशा चाहिए, तो आई थिंक आपको मेंटोरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी। क्योंकि अभी होगा क्या ना, कि आप अगर खुद से पढ़ने का प्लान करोगे, तो यू विल नॉट हैव अ प्लान, लेट्स पहली बात तो, और आप बहुत डिसऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे। पहले एक सब्जेक्ट उठा लिया, फिर बहुत अजीब तरीके से दो सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को कम टाइम दिया, किस सब्जेक्ट को कम टाइम दिया, किस सब्जेक्ट को ज्यादा दिया, ये समझ ही नहीं आएगा यार आपको। और जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, वो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, प्लानिंग का टाइम होता ही नहीं है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई यू आर 1 out of those 1,000 स्टूडेंट्स जो सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर आपके पास बोर्ड शुरू होने से पहले स्टडी प्लान है कि मुझे उन 2 महीनों में क्या करना है, तो आप खुद से पढ़ लो। और अगर नहीं है, तो एक अच्छा मेंटोर ढूंढ लो। मैं ये नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली जाके कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ मेंटोर विदाउट ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। बहुत प्लेन वाने है, क्योंकि जो बच्चे तुम्हारे साथ compete कर रहे हैं ना, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इट्स अ प्री रिक्विजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और इसमें चीज होती है कि यार बच्चे मॉक्स नहीं देते हैं। जब तक तुम मॉक्स नहीं दोगे, तुम बेंचमार्क नहीं कर पाओगे वेयर यू स्टैंड। अभी तुषार सर ने बताया, आजकल स्क्रीन पे टेस्ट होता है। जब तक लैपटॉप की स्क्रीन पे दिन में रोज एक मॉक मॉक नहीं दोगे ना, तब तक आदत ही नहीं पड़ेगी स्क्रीन देखने की। तब तक हमें, क्योंकि पेपर देखने की आदत है, हमने कभी स्क्रीन पे पढ़ाई करी नहीं है, तो you won't be able to manage it thoroughly if you don't give mock test। And लास्ट में एक चीज और थी कि you guys should really focus on कि हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, उसको हम बहुत सही से प्लान करें, करेक्ट। क्योंकि
you need to be extra careful while filling your application form. हम लोगों ने, नॉट किडिंग, वी हैव सीन स्टूडेंट्स ruin their careers just because उन्होंने फॉर्म गलत भर दिया था। और पता है क्या होता है कि अभी फॉर्म फॉर्म तुम्हारा खुला हुआ है, एंड फॉर लेट से तुमने गलत भर दिया और तुम्हें पता है तुमने गलत भर दिया, तो उसकी करेक्शन विंडो कब खुलती है? अप्रैल में। तो जब तक तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम चलेंगे, यू गाइस विल बी थिंकिंग कि यार मेरे को फॉर्म ठीक करना है। एंड अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कुछ कर नहीं सकते कि तुमने गलत भर दिया, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसका बहुत एक इजी तरीका है कि जब भी फॉर्म भरो अपना, कि प्रॉपर गाइडेंस लो किसी से, ठीक है। गो टू अ गाय हु नोज ऑल द इंट्रिकेसीज, उसको सारी बारीकियां, सारी छोटी छोटी चीजें पता हो। जाके अच्छे से यूट्यूब वीडियोस देखो, बहुत अच्छे से अवेलेबल है। एंड आई थिंक देर आर पीपल हु आर प्रोवाइडिंग फॉर्म फिलिंग सर्विसेज एज वेल मार्केट में, राइट। सो फॉर्म बहुत ढंग से भरना अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज दिस गाय हु डिड नॉट नो दैट इंग्लिश सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी इंग्लिश आ जाएगा, क्योंकि कहीं उसने पढ़ लिया कि यार इंग्लिश तो कंपलसरी लैंग्वेज है। तो व्हाट ही डिड वाज, while selecting the subjects in his form, he did not even select इंग्लिश, कि इंग्लिश तो कंपलसरी है ना उसका, तो वो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही होगा, राइट। एंड सारे अच्छे कॉलेजेस में दिल्ली में, और सारे अच्छे भी नहीं, सारे कॉलेजेस में लैंग्वेज is a compulsory subject, all in every course in Delhi University language चाहिए। और सोचो उसने एक साल खराब करा अपने इस छोटी सी गलती के पीछे, उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी, बट जस्ट बिकॉज उसने जल्दीबाजी में फॉर्म भरा था। तो अगेन डबल चेक, ट्रिपल चेक, देन चेक अगेन योर फॉर्म, फिर भी एक और बार चेक करो बिफोर हिटिंग द सब्जेक्ट सबमिट बटन, राइट। सो आई थिंक दिस इज हाउ योर माइंडसेट शुड बी, कि यार प्लानिंग मुझे पहले से करनी है, टू समराइज दिस, ताकि जो बचे हुए 2 महीने हो मैं उसमें खाली एग्जीक्यूशन करूँ, वो प्लानिंग के लिए नहीं होते हैं, करेक्ट। और अगर तुम्हारे पास एक अच्छा मेंटोर है तो तुम्हारे लिए प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब प्रिपेयर कैसे करना है वो तो चार्जर बताएंगे। ओके, ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया। सो अब ना आई क्विकली रन देम थ्रू कि क्या क्या चेंजेस हुए इस साल, एंड मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है ना उस चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बाकी यू गाइस कैन टेक कॉल इफ यू फील कि यार देयर कुड बी सम अदर रेपरकशन आल्सो, तो यू कैन टेक अ जजमेंट ऑफ दैट। वन सेकेंड। ऑल राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इज, जो सीयूटी जैसे जब शुरू हुआ था तब वो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में होता था। कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट का मतलब है दैट यू वुड बी गोइंग टू अ सेंटर जहां पे यू वुड बी गिवन अ कंप्यूटर, on that computer there would be the test is going to be happening on a computer screen। so एक टेस्ट शुरू होगा, 60 मिनट्स का टाइमर आएगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2023 में ओएमआर का भी ऑप्शन आ गया था कि कुछ पेपर ओएमआर पे होते थे, कुछ पेपर कंप्यूटर पे होते थे। बट फ्रॉम 2025 onwards every single paper that you're going to be giving is going to be a computer based exam। सो यू गाइज हैव टू बी वेरी श्योर कि तुम उस पोर्टल को नेविगेट करना जानते हो, तुम उस पोर्टल को समझते हो, तुम एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के और पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी मीट दे से सैट सर वी आर वेरी गुड विद लैपटॉप्स, वी आर वेरी savvy विद लैपटॉप्स, आप कितना भी इंस्टाग्राम हमसे चलवा लो, कितनी भी यूट्यूब दिखवा लो, लैपटॉप पे हम बढ़िया देखेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर स्क्रीन इट इज डिफिकल्ट। जब एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा ना कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रॉल अप डाउन करते हुए, इट इज डिफिकल्ट, यू कांट कॉन्सेंट्रेट, यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर स्क्रीन। सो प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है। सेकेंडली, नेविगेशन इज एन इशू। तो अगर तुम कोई मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तुम सीधा उस दिन जाके सीयूटी को पहली बार देखोगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, यू विल बी ब्लैंक बिकॉज यू वुड नॉट नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू क्लिक, वेयर टू क्लिक, एंड दैट इज व्हाई एनसीओ इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो आओगे तो तुम देखोगे एनसीओ पे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सिमिलरली टेक अ मॉक सीरीज, टेक सम टेस्ट सीरीज विच यू कैन प्रैक्टिस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। Thirdly, those computer centers that are there are not lavish। ठीक है, they are not like your home जहाँ पे एसी चल रहा है, मस्त लाइट आ रही है, तुम्हारे पास मैकबुक है तो मैकबुक खोल के काम कर रहे हो, वैसा नहीं होगा। मई में एग्जाम होता है, गर्मी होती है, वहां के पंखे नहीं चलते, 10,000 बच्चे वहां पे एग्जाम दे रहे होते हैं, तो शोर मचा होता है।
कंप्यूटर में कभी तुम्हारा कीबोर्ड नहीं चलता, कभी तुम्हारा माउस नहीं चलता, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्कमस्टांस लाइक दोस वेयर यू नो कि हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में कोई इशू हो, तो मेरे 5-10 मिनट हो सकता है खराब हो। एंड दिस हैपेंस, एंड आई एम नॉट किडिंग, गो टू गूगल एंड तुम सर्च कर लो, गूगल पे ऐसा होता है। तो लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले वाले सालों में भी होता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सीबीटी एग्जाम, दैट इज व्हाट द क्रक्स दैट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो प्लीज प्रिपेयर, give couple of mock exams and make sure you are good to go with respect to anything that might go wrong at the center. This is the first change that has happened. Second change, last year tak every student was given a choice to take up to 6 subjects in CUET. So our suggestion to students was that take 5 subjects that you're reading in your 12th. So if I'm a student in class 12, तो मैं, let's say मेरे पास English है, accounts है, BST है, economics है और maths है। सो मेरा सजेशन होता था कि यार 5 तो वो ले लो जो तुमने स्कूल में पढ़ा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट तुम जीटी ले लो, जनरल टेस्ट ले लो। जनरल टेस्ट से तुम्हारे जितने भी कॉलेजेस हैं सबका तुम्हारा विंडो ओपन हो जाएगा, इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ, इवन इफ यू डोंट वांट टू गो टू एनी कॉलेज जहाँ पे जीटी नहीं मांग रहे हो, बाकी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन हमेशा रहेगा। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि यू कैन ओनली टेक अप टू 5 सब्जेक्ट्स, यू कैन ओनली टेक अप टू 5 सब्जेक्ट्स। अब उन 5 सब्जेक्ट्स में इशू क्या है, एवरी स्टूडेंट वुड हैव टू टेक अ कॉल कि यार मैं जीटी लूं या मैं अपना फोर्थ डोमेन सब्जेक्ट लूं। तो अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूं तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैं मैथ्स लूं या जीटी लूं, या मैं जीटी लूं या फिर इकोनॉमिक्स लूं, तो मुझे एक सब्जेक्ट अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक इज योर एकेडमिक्स, यू हैव टू नाउ टेक अ कॉल कि कौन सा सब्जेक्ट मैं नहीं लूंगा सीयूटी में। क्या मैं जीटी नहीं लूंगा, या मैं कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं लूंगा, और डोमेन सब्जेक्ट नहीं लूंगा तो कौन से वाला डोमेन सब्जेक्ट मैं नहीं लूंगा, बिकॉज यू कैन ओनली फिल अप टू 5। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी श्योर of what all 5 subjects you want to take. Consult your teachers, consult your mentors, consult somebody who has given CUET, consult somebody who prepares for CUET, and mentor students for CUET to understand कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। और ये जरूरी क्यों है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सीयूईटी जैसे बोर्ड्स में होता है ना कि कुछ पेपर मुश्किल आते हैं, कुछ पेपर आसान आते हैं, ऐसा सीयूटी में भी होता है। सो अ सब्जेक्ट लाइक मे बी लेट्स से accountancy would be considered easy as compared to a subject like maths and CUET, बट बोर्ड्स में शायद दोनों इक्वल डिफिकल्टी के होते हैं। जो मैथ्स का पेपर होता है सीयूटी में वो एक्सट्रीमली टफ आता है, तो अगर तुम्हारे मैथ्स में 200 में से 150 नंबर भी आए, तो इट इज अ गुड स्कोर टू गेट इनटू एनी गुड डिसेंट नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस कॉलेज। ठीक है, सो यू हैव टू कंसल्ट समबडी हु कैन टेल यू कि लास्ट 3-4 साल में क्या हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कितना मुश्किल आता है, किसमें कितने मार्क्स मिलते हैं, तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड चेंज दैट हैज हैपेंड, till last year you were given 50 questions in every paper, and out of those 50 you had to do 40। so 10 questions ऐसे होते थे जो तुम्हें deliberately छोड़ने पड़ते थे। इस साल से वो हट गया है, इस साल से you will get 50 questions in your paper and a candidate is expected to do all 50। तो जो अच्छा बच्चा होगा या जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, वो कोशिश करेगा मैं 50 के 50 करूं विद जीरो मिस्टेक्स। तो जो पहले 10 क्वेश्चन का बफर होता था, जो एक सेविंग ग्रेस होता था कि यार अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम इसको बचे हुए 10 क्वेश्चन में छोड़ देंगे, वो अब नहीं है। अगर तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और तुमसे भी अच्छी किसी ने पढ़ाई करी है, तो वो 50 के 50 करेगा, तुम शायद 49 करके छोड़ दोगे, तो 50 वाले को ऑब्वियसली एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू समबडी हु हैज ओनली डन 49। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, नॉट डिफिकल्टी बट कॉम्पिटिशन जरूर बढ़ जाएगा। इसके अंदर देर इज अनदर पॉइंट दैट प्रीवियसली द एग्जाम्स वर ऑफ अराउंड 45 मिनट्स, सम ऑफ देम वर ऑफ 60 मिनट्स। दिस ईयर ऑल एग्जाम्स आर ऑफ 60 मिनट्स। तो असेंशली तुम्हें 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं, और यू हैव टू डू वन क्वेश्चन इन 1-1.5 मिनट्स। ठीक है, सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि तुम 60 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाओ। दिस इज द थर्ड बिग चेंज दैट हैज हैपेंड इन सीयूटी 2025। फोर्थ चेंज, फोर्थ चेंज इज दैट लास्ट ईयर तक ये होता था कि अगर तुमने कोई सब्जेक्ट सीयूटी में अपने 12th में नहीं पढ़ा, वो सब्जेक्ट तुम सीयूटी में नहीं ले सकते थे। सो इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट, यू कुड नॉट सिट फॉर अ मैथ्स पेपर इन सीयूटी।
बट दिस ईयर इट हैज चेंज्ड। अगर मेरे पास मैथ्स नहीं है क्लास 12th में, बट मुझे सीयूईटी में मैथ्स का पेपर देना है, तो मैं मैथ्स बाहर से पढ़ सकता हूँ और सीयूईटी में मैथ्स का पेपर दे सकता हूँ. सो यू कैन ऑल्सो सिट फॉर सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी which you have not read in class 12th, which you don't have in class 12th. So this is the flexibility that is being given by NTA CUT कि यार अगर तुमने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो भी तुम अपीयर कर सकते हो, बाहर से प्रिपेयर कर लो, उसके लिए बैठ जाओ, क्रैक कर लो. अगर तुम क्रैक कर लोगे तो तुम्हारे को हम कंसिडर कर लेंगे. ठीक है. These are major changes that have happened. And what might also change, I'll tell you, there was a format which was called normalization. मैं normalization का थोड़ा understanding दे देता हूँ. So टिल 2023 क्या होता था कि जो पेपर्स होते थे ना हमारे, वो पेपर्स होते थे अलग अलग दिन. तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल क्षितिज सर का एग्जाम है इंग्लिश का आज, सो हो सकता है मेरा जो इंग्लिश का एग्जाम होगा वो परसों होगा. फिर लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट कॉल अनन्या, इसका एग्जाम शायद 4 दिन बाद होगा इंग्लिश का. तो एक जो पेपर होता था इंग्लिश का वो 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा. ऐसा होता था पहले सीयूटी में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने कंप्यूटर्स ही नहीं थे कि वो 13 लाख 14 लाख बच्चों का एक दिन एग्जाम करा सके इन एंटायर इंडिया. सो ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग एग्जाम, एक सेम एग्जाम अलग अलग दिन होता था. उसमें अब दिक्कत क्या होती थी कि लेट्स से क्षितिज सर का एग्जाम था मुश्किल और मेरा एग्जाम था इजी. नाउ आई इफ आई स्कोर्ड a score of 194 out of 200 and Kshitij sir has also scored a score of 194 out of 200, his and my score can't be same क्योंकि यार उनका एग्जाम मुश्किल था, मेरा आसान था. ठीक है. सो एक प्रोसेस होता था नॉर्मलाइजेशन का. उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट ये बोलती है कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इंग्लिश के फॉर सीयूईटी 2025 स्टूडेंट्स लेट्स से, उन सबका जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है ना, हम वो एक लेवल पे लाएंगे. एंड उसके बाद जो तुम्हारा 194 आउट ऑफ 200 है ना, वो ऊपर नीचे हो सकता है. सो जब नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि क्षितिज सर का जो पेपर था वो मुश्किल था और मेरा पेपर आसान था, तो मेरा जो 194 है हो सकता है वो 190 हो जाए, और क्षितिज सर का जो 194 है हो सकता है वो 194 रहे या फिर हो सकता है 196 हो जाए. So after normalization, our score has changed. My score has reduced from 194 to 190, and his score has improved from 194 to 196. This is something which is not in students' control. This is something which is based on a formula which NTA says कि कोई formula है जिसके basis पे calculate होता है. But normalization was a horror to the students. We have seen students getting some marks and then sir normalization हो गया, marks ये हो गए. तो होश उड़ जाते थे बच्चों की, भाई इतने मार्क्स कैसे कहाँ गए मेरे, पढ़ कैसे गए, कम कैसे हो गए. सो इट माइट हैपन दिस ईयर ऑल्सो बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ मूविंग ऑनलाइन इन सीबीटी फॉर्मेट. ठीक है. सो दीज आर कपल ऑफ ब्रॉड चेंजेस दैट हैव हैपेंड. I think we would have covered most of the things that are to be done with CUET and how things are going to be changing for CUET. My only suggestion to you would be last couple of things that I would want to say. In the last 3 years that we have prepared students for CUET, we have seen difficulty increasing. हमारे फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में, थर्ड बैच में वी हैव सीन कैसे बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा टाइम डालना पड़ता है सीयूटी में, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जाम जो तुरंत निकल जाएगा. तुम्हें फॉर्मेट की आदत नहीं है, तुमने ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बहुत कम दिए हैं, and this is highly competitive because you're not only competing with CBSE students, you are competing with all board students. ठीक है. Seats are limited. So start preparing as soon as possible. Although your boards are right around the corner, but my suggestion would be अगर अभी भी तुम शुरू करोगे प्रिपेयर करना, तो तुम्हारे पास 15-20 दिन होंगे. 15-20 दिन में यू कैन एटलीस्ट गेट योर सेल्फ फेमिलियराइज्ड विद वॉट इज सीयूटी, कैसा पेपर आएगा, एक दो मॉक्स देके देख लो, उससे हेल्प मिलेगी. ठीक है. सो ट्राई टू डू एटलीस्ट दिस. फेब्रवरी मार्च में बोर्ड्स पे ध्यान दो, मार्च खत्म होते ही सीयूटी में लग जाओ 1 अप्रैल से, एंड लगातार प्रिपेयर करो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है. ठीक है. सो प्लीज डू दैट. I, Kshitij sir, and even Paresh sir, you can search about us on Google. You can read about us on LinkedIn. All three of us have been coaching students. If you want counseling from us, we do free counselings. We don't charge anything for the counselings. You can book a slot with us. I'll share a form. If anybody is interested in booking us counseling with us, you can do that.